How do you speak English? How do you speak English with confidence? How do you speak English fluently? How do you improve your communication skills? I've got 5 simple steps to improve your English. The number of words that I know in English isn't too much, so my vocabulary is not that good. But I have lots of clarity of thoughts in my mind. And also, I am really confident in front of camera, in front of people also. I can speak English in front of people whether I know it or not. So you all guys think that my English is really good. If there is any situation where I can't speak English, I start speaking Hindi with some simple tricks that you can apply to in the process of learning English. अरे क्लासेस ज्वाइन कर ले, ग्रामर सीखने पे ध्यान दे, इंग्लिश ऐप यूज कर. मे बी आपको जब भी इंग्लिश सीखने के लिए आप किसी को बोलेंगे तो आपको यही एडवाइस मिलती होगी ना कि ये कर ले और फिर तुम्हारी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी. बट आई पर्सनली डोंट बिलीव these things gonna work. These things may gonna work, but right now, if you are a beginner, it's not gonna work for you guys. I've got you some simple, easy steps that you can follow if you really wanna improve your English. So let's get started. Listen, all these stressful suggestions, just keep it side, because I personally think that if you want to learn any new language, you have to enjoy that process first. अगर आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप नहीं सीख सकते, ट्रस्ट मी. या फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, या फिर आप एक रट्टू तोता टाइप हो जाएंगे. बट अगर आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, लाइक आई एंजॉय लर्निंग इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई लर्न इंग्लिश. और मुझे ये चीज़ ऐसी चुभती नहीं है कि ठीक है मैं बहुत टाइम दे रही हूँ, मैंने आधा घंटा दे दिया, मैंने 1 घंटा दे दिया. मैं ये चीज़ नहीं सोचती, क्योंकि मैं उस चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ. एंड दैट विल बी अप्लाइड फॉर यू ऑल्सो. सो इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. एंजॉय. ओके, enjoy करो जो भी आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं. There are lots of people who don't know Hindi, so they will also apply all these steps. So keeping enjoyment in your mind, I've got 3 easy steps and solution, you can say. These 3 solutions are basically 3 options in order to improve your English. If you really want to improve it, make it a habit to learn English. You can give 15 minutes per day, or you can give as much as time you can give. You gotta make it habit to practice all these 3 options. And I personally suggest you 1 hour a day is a good start with. Watch video content. For example, cartoons. The best thing you can do with yourself is watching cartoon to improve your English. Like cartoons में जो language होती है बहुत ही easy होती है, क्योंकि वो छोटे बच्चों के लिए बनी होती है. तो it's not bad if you are watching cartoons. If you are interested, definitely. बट अगर आप कार्टून्स को इंग्लिश में करके देखेंगे, इट विल रियली गोना इम्प्रूव योर इंग्लिश अ लॉट. But make it habit. Okay, if you think that you are too big to watch cartoons, there are some other options also. You can watch English movies, Netflix and web series. उनको इंग्लिश में देखो, उनको ऑब्जर्व करो, वो क्या बोल रहे हैं सुनने की कोशिश करो, अप्लाई करो, मिमिक करो. इट विल गोना हेल्प यू अ लॉट. आपको डेली ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है. एंड थर्ड ऑप्शन इज, इफ यू आर अ क्रिकेट फैन, यू कैन लिसन कॉमेंट्री. Yes, you can listen commentary in English. इंग्लिश कमेंट्री सुनने से भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आप बहुत इंटरेस्ट के साथ क्रिकेट देखेंगे और उस चीज़ को सुनेंगे, तो वो चीज़ आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करने लग जाएंगे. बेसिकली आई वॉन्ट टू टेल यू इज कि अपने इंटरेस्ट का वीडियो कंटेंट लीजिए और उसको इंग्लिश में देखिए. वेरी इजी एंड सबसे ज़्यादा वर्किंग करने वाली चीज़ है ये. जस्ट find out your video content कि आपको किस फील्ड में पसंद है. लव कुकिंग, देन यू कैन वॉच गुड टाइम्स एंड TLC types of channels. If you like cartoons, you can watch any Disney International and Disney Channel, all these things. If you like sports, you can watch sports channel. And if you like news, you can watch BBC, CNN. So these are some things that you can apply to work on your English. So this is the first thing you have to do. You have to start watching. Make it in your habit that you have to watch at least 1 hour. Make it in your habit that you have to watch at least 1 hour, 30 minutes, anything in English. And with interest, not without interest. क्योंकि अगर आप without interest देखोगे तो आपके कानों में कुछ भी नहीं पहुंचेगा. आप बस सुनते रहोगे, देखते रहोगे. ओके, 30 मिनट्स आ होगा, we have to go now. तो 1 महीने बाद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. If you are really interested, because माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं छोटी थी, आई यूज टू वॉच हैना मोंटेना अ लॉट. सीरियसली, मैं उसको हिंदी में ही देखती थी वैसे, लेकिन
उसमें बहुत सारी टर्म्स जो आती थी वो इंग्लिश में आती थी, जिसकी वजह से मेरा नॉर्मल जो एक बेसिक वर्ड वोकेबलरी होती है वो बहुत अच्छी हुई थी। आफ्टर दैट हैना मोंटाना आना ही बंद हो गया और उसके बाद वो आने लगा डिज्नी इंटरनेशनल पे। उसमें हिंदी का सिस्टम होता नहीं है, तो चूंकि मुझे हैना मोंटाना बहुत पसंद था तो मैं उसे इंग्लिश में ही देख लेती थी, तो उसकी वजह से मेरी सेंटेंस मेकिंग भी बहुत अच्छी हो गई और मेरी वोकेबलरी भी अच्छी हो गई और धीरे धीरे मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो गई। And that's why I speak in that type of way, a little bit in that way, because I used to watch these types of shows. I absorb them a lot, and that's why sometimes I may act like them also. So in order to improve your English, you have to watch anything in which you are interested in. Start watching video content in English, okay? उसमें भी आप क्या करेंगे, हिंदी में देख लीजिए एक बार आप हिंदी में देख लीजिए, अगली बार आप उसके सबटाइटल्स लगा लीजिए और ट्राई टू रीड दो सबटाइटल्स। कानों में आवाज जाएगी आपकी टीवी चलने की वजह से, आंखें आपकी रीडिंग में लगी रहेंगी, तो आपको बोलने की कि वो क्या बोल रहे हैं और आप क्या पढ़ रहे हैं उसमें डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज लिसनिंग पार्ट कंप्लीट हो गया। आप वॉच कर रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ वॉच कर रहे हैं, तो वो वैसे भी आपके ब्रेन में सीधे सीधे जाता रहेगा। सेकेंड इज स्टार्ट इंक्रीजिंग योर वोकेबलरी। अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज करने का क्या तरीका है, उसमें भी आपको कुछ खास नहीं करना, आपको यही वीडियो कंटेंट देखते रहना है, लेकिन स्टार्ट अप्लाइंग दोज थिंग्स ऑल्सो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लिए वोकेबलरी बहुत ज़रूरी है, नहीं है, बट शुरुआत के लिए वर्ड्स तो होने चाहिए ना सबके पास। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो और आपको वर्ड्स ही नहीं पता तो आप कैसे बोलेंगे। मैं इट्स नॉट कि आप फ्लुएंट इंग्लिश मत बोलो, आप हिंदी बोलो, लेकिन कुछ एक जो टर्म्स होती है वो तो आप कम से कम इंग्लिश में बोल सकते हो ना। कभी कभी बोलते हैं तो कुर्सी की जगह हम उसको चेयर बोल सकते हैं, राइट? तो ऐसे जो बेसिक वर्ड्स हैं जैसे कि डोर ओपन करो, ये हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर है, सो यू कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। वोकेबलरी लर्न करना स्टार्ट करो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत ही एडवांस या बहुत ही ज़्यादा कूल या फिर अलग तरीके की वोकेबलरी लर्न करो, मत करो ऐसे वर्ड। अभी आप सिर्फ बोलना सीख रहे हो, पहले आपकी हेजिटेशन हटनी चाहिए, पहले आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए बोलने का कि हाँ मैं बोल सकता हूँ। और उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हिंदी के अंदर ही इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, किसी ने बोला कि ऐसा कुछ है, रियली ऐसा है? These types of basic words you can use. I will, in my next video, I'm going to tell you some basic words जो आप डेली यूज में बोलेंगे तो सामने वाले को भी लगेगा कि आपको काफ़ी इंग्लिश आती है और आपकी हेजिटेशन खुलेगी। जब आप छोटे छोटे वर्ड्स इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो आपको ऐसा होता है, आपके लिए इंग्लिश ना बहुत यूज टू हो जाती है कि ठीक है हम बोलते रहते हैं। तो जब छोटे छोटे वर्ड बोलना सीखेंगे तो धीरे धीरे एक स्मॉल लाइन बोलना सीखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी बड़ी लाइन बोलना सीखेंगे और उसी से हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। स्टार्ट कलेक्टिंग वर्ड्स, अपने ब्रेन में दिमाग में रखिए। जैसे जो कि मैंने बताया आपको, अगर आप फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको वहां से ही बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे जो आप सुन रहे हैं। तो आप बोलने की कोशिश करो दूसरों के सामने। पूरी इंग्लिश नहीं बोल सकते, कोई टेंशन नहीं है, बट एटलीस्ट वोकेबलरी तो, नॉर्मल वोकेबलरी तो आप डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, मुझे ना कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, तो ये फीलिंग वर्ड इंग्लिश हो गया। ऐसे धीरे धीरे अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में, डेली लैंग्वेज में अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश के वर्ड्स डालेंगे तो आपकी इंग्लिश में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है, ऑलमोस्ट सबको इंग्लिश आती है, सब समझ पाते हैं इंग्लिश, लेकिन बोल नहीं पाते, तो वो हेजिटेशन जो है वो निकल जाएगा जब आप ये छोटे छोटे वर्ड्स को अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करेंगे। वेल, ऑन थर्ड नंबर आई विल टेक रीडिंग। रीडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू रीड सो दैट आपको पता चले कि जो चीज मैं सुन रहा हूँ वो उसकी स्पेलिंग क्या है और उसको मैं कैसे बोलूंगा। कंपेयर कीजिए कि जो चीज आप सुन रहे हैं और जो सामने आपको दिख रहा है उसको पढ़ने में आप कितनी गलती कर रहे हैं। अपनी खुद की मिस्टेक्स को पकड़ो और उनको हटा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनने की कोशिश करो। टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल देखे हैं जिनमें वो इंग्लिश सिखाते हैं लेकिन उनका खुद का प्रोनाउंसिएशन बहुत रॉन्ग होता है। और इसमें मैं उनको दोष नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस रीजन में, जिस एरिया में वो रहते हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। वो इंग्लिश को भी उसी लैंग्वेज में बोलते हैं। जब बहुत सारे लोग अपनी मदर टंग में ही इंग्लिश बोल लेते हैं तो उसकी वजह से वो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं हो पाता है। तो इससे बेटर है कि आप ऐसे लोगों से इंग्लिश सुनने की कोशिश करें जो प्रॉपर इंग्लिश बोलते हो। ओके, just like you can watch foreign videos, you can watch someone who can speak fluently, who can speak correct English. सबसे बेस्ट है, जो भी चीज देख रहे हो सबटाइटल्स ऑन कर लो, आप सुनते रहो, पढ़ते रहो, सुनते रहो, पढ़ते रहो, तो आपको पता चलेगा जो सामने वाला बोल रहा है वो क्या है
और आप जो पढ़ रहे हो उसमें कितना अंतर है। ठीक है, आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो जाएगी और आपका सुनने के साथ आपके कान भी काम करेंगे। यूज ईयरफोन, ओके, यूज ईयरफोन एंड देन स्टार्ट रीडिंग। आप ये भी कर सकते हैं कि कोई भी मूवीज या कुछ भी ऐसा देख रहे, जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं इंग्लिश में, पहले उसको इंग्लिश में देखो, बाद में उसका सबटाइटल्स ऑन कर लो और फिर उसको पढ़ने की कोशिश करो। बहुत इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि उसकी वजह से हम हाउ टू मेक सेंटेंसेस मेक करना स्टार्ट कर दीजिए, सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर दीजिए कि एग्जैक्टली हमको सेंटेंस किस स्टाइल में फॉर्म करना है। हो सकता है हम जिस वे में उस सेंटेंस को बोलना चाह रहे हैं वो एग्जैक्ट सही वे है ही नहीं, बोला किसी और ही तरीके से जाता है और हम अलग ही अपनी तरफ से कुछ बना रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारी मिस्टेक्स हमारे पकड़ में आएगी और हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है। नंबर 4, आई विल टेक मिमिक्री। मिमिक वॉट एवर यू आर लर्निंग, ओके। आप जो कुछ भी सीख रहे हैं उसको जब तक बोलेंगे नहीं तब तक वो आपकी हैबिट में आएगा ही नहीं। सो स्टार्ट स्पीकिंग, ओके, स्टार्ट डूइंग मिमिक्री। अब इसमें ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा ठीक है यार, मैं इंग्लिश चैनल देख रहा हूँ और वो बहुत ही स्टाइल मार रहे हैं तो मैं बिल्कुल उसके वे में बोलूंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ें बहुत होता है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ही होता है, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को देखती हूँ मैं उसको ऑब्जर्व कर लेती हूँ और फिर मेरा स्टाइल ही वैसा ही हो जाता है और फिर लोगों को लगता है कि ठीक है ऐसे ही बोल रही है। और इट इज़ ऑब्वियस, मैं इसका कुछ कर नहीं सकती, लेकिन ये चीज़ होती है वाकई में बहुत लोगों के साथ कि आप जिस चीज़ को देखते हैं आप धीरे धीरे उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और फिर आपका वे ऑफ टॉकिंग भी उसके जैसा हो जाता है। सो अगर आपका हो रहा है होने दो, बाद में ठीक कर लेना, अभी फोकस करो अब तो लर्निंग पे। ठीक, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, रिलैक्स, ओके, जस्ट रिलैक्स एंड keep going. I think that's all for today. I think those steps, if you follow all these steps, you can learn English very easily. It is not that hard things. मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है बट उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल घुटनों में है। सो प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि आपका इंटेलिजेंस आपकी वे ऑफ स्पीकिंग या फिर इंग्लिश की वजह से पता चलेगा, क्योंकि ये आपके दिमाग की वजह से पता चलेगा, इंग्लिश की वजह से नहीं। सो जस्ट रिलैक्स, ओके, start learning from today. Start giving at least half hour daily to your English and watch it, observe it from the environment and start speaking. Okay, so आपने अभी तक देखा है, that means you may understand something in this video. So if you came here for the first time and haven't subscribed yet, what you have to do now, subscribe. So subscribe करो, पसंद आया वीडियो लाइक कर दो, and you can also connect on my other social media platform like Instagram, Facebook, and Twitter, where I post some other funny videos. You can watch them also.